Hi friends, once again welcome on our YouTube channel. This is the next lecture of classical mechanics in which we will discuss about Lagrangian formulation in generalized coordinate. तो क्लासिकल मैकेनिक्स के आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे Lagrangian formulation of generalized coordinate और Lagrangian formulation in generalized coordinate. In this lecture, we will discuss about Lagrange's formulation in generalized coordinate, degree of freedom and generalized coordinate. तो आज के लेक्चर में Lagrange's formulation in generalized coordinate, degree of freedom and what do you mean by generalized coordinate? So first of all, Lagrange's formulation in generalized coordinate. तो Lagrange's formulation in generalized coordinate क्या है? Now first of all, we will discuss about change of notation. अब हमारे पास में अगर n पार्टिकल सिस्टम है तो आप नोटेशन को किस टाइप से चेंज करोगे वो यहां पर हम डिस्कस करते हैं. We consider a system of n particles. We generalized the Cartesian coordinate and mass. तो यहां पर हम एक n पार्टिकल सिस्टम लेते हैं एंड हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड मास को जनरलाइज करना चाहते हैं. मीन्स अगर किसी पर्टिकुलर पार्टिकल के लिए आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लिखना हो या उसको मास लिखना हो तो वो कैसे लिखोगे? सो दिस इज द टेबल. हियर वी हैव पार्टिकल नंबर, coordinate and mass. If the coordinate of first particle is x1, y1 and z1 and m1 is its mass, then if we change its notation, then x1 is replaced by x1, y1 is replaced by x2, z1 is replaced by x3. Similarly, the mass corresponding to x1 is m1, mass corresponding to x2 will be m2 and the mass corresponding to x3 will be m3. Now if we consider about particle number 2, तो अगर हम सेकंड पार्टिकल लें then its coordinate will be x2, y2 and z2 and if we change its notation then x2 is replaced by x4, y2 is replaced by x5 and z2 is replaced by x6 and m2 is the mass of second particle. But if we want to write the mass corresponding to x4 then it will be m4, mass corresponding to x5 will be m5 and the mass corresponding to x6 will be m6. So in this way we can change its coordinate and mass. Now what will happen if we consider about a system of particle and we want to write the coordinate corresponding to particle number n and the mass corresponding to this particle. तो यदि हमारे पास में n पार्टिकल सिस्टम है तो अगर nth पार्टिकल की बात करें तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा एंड उसका मास क्या होगा? अब यहां पर Z2 अगर है तो उसको हमने x6 लिखा है, ये x2 है तो उसको x4 लिखा है. सिमिलरली इफ वी राइट द कोऑर्डिनेट एंड मास corresponding to particle number n, then now the coordinates of nth particle are xn, yn
and Zn, and its mass is Mn. Now, if we change its notation, then Zn is replaced by X3n. In the same way, Yn will be X3n minus 1 and Xn will be replaced by X3n minus 2, and the mass corresponding to X3n will be M3n, mass corresponding to X3n minus 1 will be M3n minus 1, and the mass corresponding to X3n minus 2 will be M3n minus 2. Now, if we write here n equal to 2, it means we want to change the notation of second particle. So if n equal to 2, then x2 will be x 3 into 2, that is 6, minus 2 means x4. So x2 is our x4. If we write n equal to 2 here, then y2 equal to x 3 into 2 means 6 minus 1. It means y2 will be replaced by x5. And here we write y2 as x5, and similarly if we write here n equal to 2, then z2 will be x6. So अगर यहाँ पर हम n की जगह 2 रखें तो हमको x2, y2 and z2 के नए कोऑर्डिनेट मिलेंगे, और वो जो कोऑर्डिनेट होंगे वो हमारे ये कोऑर्डिनेट हैं. इट मीन्स nth पार्टिकल के लिए जो हमने कोऑर्डिनेट एंड मास को नए नोटेशन में लिखा है वो हमारा बिल्कुल सही है. The rth particle has Cartesian coordinate and mass as. So अगर हम rth पार्टिकल की बात करें जैसे हमने nth पार्टिकल लिया था, in the same way if we take rth particle, then its Cartesian coordinate and mass will be x3r minus 2, x3r minus 1 and x3r. And in the same way, mass will be m3r minus 2, m3r minus 1 and m3r. So these are the Cartesian coordinate of rth particle in new system, and these are the masses corresponding to these coordinate. तो ये हमारे कोऑर्डिनेट हैं, और इन कोऑर्डिनेट के कॉरस्पॉन्डिंग जो मास होंगे वो हमारे ये होंगे. यहां पर हम rth पार्टिकल की बात कर रहे हैं, तो जैसे हमने nth पार्टिकल के लिए लिखा था उसी टाइप से यहां पर हमने rth पार्टिकल के लिए लिख दिया है. नाउ डी-एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल. अब डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल हमने हमारे लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. अकॉर्डिंग टू डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल, सिग्मा j इक्वल टू 1 to n एफ जे अप्लाइड माइनस pj डॉट डेल्टा rj इक्वल टू 0. हियर डेल्टा rj इज द वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ jth पार्टिकल. तो jth पार्टिकल का जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट था वो हमारा डेल्टा rj था, एंड एफ जे अप्लाइड इज द अप्लाइड फोर्स ऑन jth पार्टिकल. And here we have the linear momentum of jth particle. Now, if we write it in new system, then sigma I equal to 1 to 3n, क्योंकि अगर n पार्टिकल सिस्टम है तो हमारे x1 से लेके x3n तक कोऑर्डिनेट होंगे. सो यहां पर हमने सिग्मा i इक्वल टू 1 to 3n लिखा है. सो सिग्मा i इक्वल टू 1 to 3n एफ आई अप्लाइड माइनस एम आई डी टू एक्स आई बाई डी टी टू डॉट डेल्टा एक्स आई, बिकॉज पी जे डॉट इज द फोर्स ऑन jth पार्टिकल, एंड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ फोर्स एफ इक्वल टू एम ए. और ए को चाहे तो हम डी टू एक्स बाई डी टी टू लिख सकते हैं,
इसलिए ये जो पीजे डॉट था इसको हमने एम आई डी टू एक्स आई बाई डी टी टू लिखा है. So the D'Alembert's principle in new form will be in this form. तो जो हमने नोटेशन चेंज किया है उस नए नोटेशन के अंदर अगर हम D'Alembert प्रिंसिपल लिखेंगे तो हमारा ये इस फॉर्म में होगा. नाउ Lagrange's इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड. अब Lagrange's इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड हमने पहले डिस्कस किया हुआ है और वो क्या था? एम जे आर जे डबल डॉट माइनस एफ जे अप्लाइड माइनस सिग्मा आई इक्वल टू 1 to k लेमडा आई डेल एक्स आई बाई डेल आर जे डबल डॉट इज इक्वल टू 0. और ये जो Lagrange's इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड है, अगर इसको हम न्यू नोटेशन में लिखें, नए नोटेशन में लिखें तो वो क्या हो जाएगा? एम आई डी टू एक्स आई बाई डी टी टू माइनस एफ आई अप्लाइड माइनस सिग्मा आर इक्वल टू 1 to k प्लस के डैश लेमडा आर डेल एक्स आर बाई डेल एक्स आई डबल डॉट इज इक्वल टू 0. Here lambda is the Lagrange's undetermined multiplier. So Lagrange's undetermined multiplier हमारा lambda था. Here k is the total number of holonomic constraints. जो holonomic constraints से उनका total number हमारा k है, and k dash is the total number of non-holonomic constraint. So non-holonomic constraint हमारे k dash हैं. अब holonomic constraint क्या है, non-holonomic constraint किसको कहते हैं, ये हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कंस्टेंट के अंदर डिस्कस किया हुआ है. नाउ ये क्वेश्चन अभी हमने लिखी है. Thus there are 3n differential equations each containing a maximum k plus k dash plus 2 terms. तो क्योंकि सिग्मा i इक्वल टू 1 to 3n होगा, इट मीन्स हियर वी हैव 3n डिफरेंशियल इक्वेशन और हर इक्वेशन के अंदर k प्लस k डैश प्लस 2 टर्म्स होंगी, क्योंकि k प्लस k डैश यहां से मिल रहा है एंड 1 and 2 ये टर्म एक्स्ट्रा हो गई. सो टोटल टर्म हमारे पास में होगी k प्लस k डैश प्लस 2 एंड i इक्वल टू 1 to 3n, क्योंकि n पार्टिकल सिस्टम है और nth पार्टिकल के कोऑर्डिनेट जो ओल्ड कोऑर्डिनेट थे वो x n y n एंड z n थे, जिनको हमने x3n माइनस 2 x3n माइनस 1 एंड x3n लिखा था. तो इस तरह से टोटल हमारे पास में 3n डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी और हर इक्वेशन के अंदर k प्लस k डैश प्लस 2 टर्म्स होंगी. ऑल्सो k प्लस k डैश इक्वेशंस ऑफ कंस्टेंट. अब कंस्टेंट हमारा r इक्वल टू 1 to k प्लस k डैश है, इट मीन्स टोटल इक्वेशन ऑफ कंस्टेंट्स विल बी k प्लस k डैश. Thus 3n plus k plus k dash equations are to be solved for 3n unknowns in xi and k plus k dash unknown in lambda r. तो हमको 3n unknown क्वांटिटी जो xi में है उनके लिए 3n प्लस k डैश इक्वेशंस को सॉल्व करना है और k प्लस k डैश हमारे पास में अननोन लेमडा आर है, क्योंकि लेमडा जो है वो हमारा अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर है एंड आर हमारा 1 to k प्लस k डैश जा रहा है. सो लेमडा की वैल्यू 1 से लेके k प्लस k डैश तक वेरी करेगी. सो हियर वी हैव k प्लस k डैश अननोन इन लेमडा आर. नाउ डिग्री ऑफ फ्रीडम. अब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ
independent variables u1, u2, un required to fix the position and configuration of a dynamical system is called the number of degree of freedom of the system. So अगर कोई हमारे पास में सिस्टम है तो सिस्टम के पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन को फिक्स करने के लिए जितने मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होगी उन नंबर्स को हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कहेंगे। हो सकता है किसी में केवल आपको एक ही नंबर की रिक्वायरमेंट हो तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो जाएगा। एंड इफ वी रिक्वायर 3 कोऑर्डिनेट टू स्पेसिफाई द पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए डायनेमिकल सिस्टम देन द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर दैट सिस्टम विल बी 3। तो यदि किसी सिस्टम की पोजीशन कॉन्फ़िगरेशन को फिक्स करने के लिए हमको मिनिमम 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल की रिक्वायरमेंट हो तो उस सिस्टम का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगा। फॉर ए पार्टिकल इन 3D मोशन, सो 3 डायमेंशनल मोशन अगर पार्टिकल का है तो क्या होगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3। फॉर ए सिस्टम ऑफ n फ्री पार्टिकल, यहां पर 1 पार्टिकल सिस्टम था एंड 1 पार्टिकल का 3 डायमेंशनल मोशन लो तो आपका वो x डायरेक्शन में मूव कर सकता है, y में मूव कर सकता है, z में मूव कर सकता है। इट मीन्स उसके पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन को स्पेसिफाई करने के लिए हमको मिनिमम 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी जो x, y एंड z होंगे। इसलिए उस सिस्टम का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगा। इसी टाइप से अगर किसी सिस्टम में n फ्री पार्टिकल है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? 3n। सो फॉर ए सिस्टम ऑफ n फ्री पार्टिकल द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर दैट पर्टिकुलर सिस्टम विल बी 3n। यहां पर हम फ्री पार्टिकल की बात कर रहे हैं, मीन्स यहां पर कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं है। इफ वी हैव अ सिस्टम ऑफ n पार्टिकल विथ k कंस्ट्रेंट, तो अगर कोई ऐसा सिस्टम हो जिसमें n पार्टिकल हैं एंड k कंस्ट्रेंट हैं तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 3n minus k। Here k is the constant and n is the number of particle in that particular system. Now, if 3-point mass is connected by 3 rigid massless rod, तो अगर हमारे पास में 3 पॉइंट मास है और ये जो पॉइंट मास है ये 3 रिजिड मासलेस रॉड से कनेक्ट हैं, इट मीन्स ज्योमेट्रिक स्टेप की होगी वो हमारी कुछ स्टेप से होगी। सो एक पार्टिकल या एक मास ये हो गया, सेकंड ये हो गया और थर्ड ये हो गया। एक रिजिड मासलेस रॉड ये हो गई, दूसरी ये हो गई और तीसरी ये हो गई। इट मीन्स हियर वी हैव 1, 2 and 3 कंस्ट्रेंट एंड n equal to 3, n equal to 3 and k equal to 3। k means number of constraint and the constant in this case is 3 and the number of particle here 3। So n is replaced by 3 and k is replaced by 3। So the total number of degree of freedom in this case will be 3 into 3 minus 3, that is 9 minus 3। It means the degree of freedom for this particular system will be 6। So it will be 6। Now for a rigid body having n is greater than equal to 3, the degree of freedom will be 6। अगर किसी सिस्टम में नंबर ऑफ पार्टिकल 3 या 3 से ज्यादा है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होगा। A rigid body
fixed at one point, degree of freedom will be 6 minus 3, that is 3. So अगर रिजिड बॉडी हमारे किसी एक पॉइंट पर फिक्स है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 minus 3 मीन्स 3 होगा. This body can rotate freely about this fixed point with these degree of freedom. तो ये जो बॉडी है इस फिक्स्ड पॉइंट के चारों तरफ फ्रीली रोटेट होगी और उसके लिए ये हमारी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है. A rigid body rotating about a fixed axis in space, degree of freedom will be 1. अगर कोई रिजिड बॉडी स्पेस में किसी फिक्स्ड एक्सिस के अलोंग रोटेट होती है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगा. नाउ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट. Now what is generalized coordinate? For a system of n particle with k independent constraint. तो हम n पार्टिकल सिस्टम ले रहे हैं और साथ में यहां पर k इंडिपेंडेंट कंस्टेंट हैं तो क्या होगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम is equal to 3n minus k and this value will be less than the total number of कार्टेशियन कोऑर्डिनेट. तो टोटल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो होंगे उससे डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू हर केस में कम होगी और n पार्टिकल सिस्टम है और साथ में k इंडिपेंडेंट कंस्टेंट है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां पर 3n minus k होगा. So we can choose any 3n minus k out of n Cartesian coordinate to the independent variable. क्योंकि n पार्टिकल सिस्टम है तो टोटल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? 3n, x1 से लेके x3n तक. और यहां पर हमको n कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में से 3n minus k कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को चूज करना है. So we can choose any 3n minus k out of n Cartesian coordinate to the independent variable. So independent variable के लिए हम n Cartesian coordinate में से कोई भी 3n minus k Cartesian coordinate चूज कर सकते हैं. So we choose q1, q2, qn independent quantities such that all Cartesian coordinates are known function of qi variables. तो यहां पर हम इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज q1, q2, qn चूज करते हैं और ये जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है इस टाइप से है, ये इस प्रकार है कि सारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हमारे qi वेरिएबल के नोन फंक्शन हो. So first coordinate x1 will be function of q1 to qn and t. Similarly, x2 will be function of q1 to qn and t. In the same way, xi will be the function of q1 to qn and t, and also x3n will be function of q1 to qn and t. तो xi हमारा q1, q2, qn, t का फंक्शन होगा. तो इस टाइप से हम हमारी इक्वेशन लिख सकते हैं. The system is called rheonomic if some or all of the above function are time dependent. Otherwise, the system is called scleronomic. तो अभी जो हमने सिस्टम लिया है, अगर उस सिस्टम के कुछ या सारे फंक्शन टाइम डिपेंडेंट हो तो सिस्टम हमारा रियोनोमिक होगा और अगर एक भी फंक्शन टाइम डिपेंडेंट नहीं हो मीन सारे फंक्शन टाइम इंडिपेंडेंट हो देन सिस्टम विल बी स्क्लेरोनोमिक. The variable defined by previous equations are called
जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। तो अभी हमने जो इक्वेशन दिखाई थी उस इक्वेशन से अगर हम वेरिएबल को डिफाइन करें तो वो हमारा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होगा। सो x1 x2 अप टू x3n हमने लिया था एंड ईच कोऑर्डिनेट इज द फंक्शन ऑफ q1 q2 qn and t and the variable defined by these equations are called generalized coordinate. So xi क्या है? xi is the generalized coordinate and it is the function of q1 q2 qn and t. Thus generalized coordinates are the independent coordinates sufficient to completely specify the configuration of a dynamical system. So डायनेमिकल सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन को स्पेसिफाई करने के लिए जितने इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट की हमको रिक्वायरमेंट होगी वो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट हमारे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हैं। सो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट आर द इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स sufficient to completely specify the configuration of a dynamical system. So डायनेमिकल सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीटली स्पेसिफाई करने के लिए हमको कुछ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट है और ये जो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट हैं ये हमारे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होंगे। द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कैन बी इन अदर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हमारे दूसरे सिस्टम के अकॉर्डिंग भी हो सकते हैं। अगर हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम लें तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या होंगे? If a particle revolves around a fixed attracting center, then the generalized coordinate are in spherical coordinate system. तो अगर कोई पार्टिकल हमारा किसी फिक्स अट्रैक्टिंग सेंटर के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, मीन्स पार्टिकल इस सेंटर से बंधा हुआ है और इसके चारों तरफ घूम रहा है, तो उस केस में हमको स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की रिक्वायरमेंट होगी। सो यहां पर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हमारे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होंगे एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हमको एक्स वाई जेड लिखना है तो वो क्या होगा? x इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, y इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई एंड z इक्वल टू आर कॉस थीटा। सो दीज आर द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हमारे ये होंगे। तो यहां पर हम हमारा लेक्चर एंड करते हैं। यहां पर हमने लैग्रेंजियन फॉर्मूलेशन इन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के बारे में डिस्कस किया है। सो गुड बाय।